الیکشن کے لیے پیغام یہ ہے کہ جتنے دیکھیے 3.5 کروڑ لوگ نئے رجسٹر ہوئے ہیں 2018 میں جتنا سالم ووٹ پڑا تھا پورے پاکستان میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اتنا ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے گا پٹواریوں کے ووٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے لیکن جتنے بھی 18 سال سے اوپر پاکستان میں جلسہ بھی کیا بہت جی میں بتاتا ہوں 18 سال کے بعد جو جنریشن آئی ہے 3.5 کروڑ یہ سارے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے آپ نے بہت سارے جلسے کیے خیبر پختونخوا میں بڑی پذیرائی ملی پنجاب میں کیا کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں ہم وہی کام یہاں پہ شروع کر رہے ہیں آغاز آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس کنونشن سے کیا وکلاء نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے آئی ایل ایف نے پورے جوش و جذبے کا اظہار کیا ہے اور انشاءاللہ جب پنجاب کے وکلاء ہمارے ساتھ ہوں گے تو سمجھے کہ آدھی ہماری جو کامیابی ہے وہ ہمیں مل گئی ہے سر کل ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سویلین کا اس پر آپ کی کیا اوپینین پاکستان کی متنازع ترین فیصلوں میں جو عدلیہ نے دی ہیں یہ ایک متنازع ترین فیصلہ تصور ہوگا یہ ایک انٹرم ریلیف دی ہے انہوں نے ریاست کو اور انٹرم ریلیف کبھی انتہائی ریئر سرکمسٹانسز میں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ انٹرم ریلیف کے ذریعے تقریباً کیس کا پورا فیصلہ ہی کر دیں یعنی آپ بادیو نظر میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریاست کے اپیل میں بڑے جواز ہیں اور اس وجہ سے آپ پروسیڈنگ جو ہیں ان انڈر ٹرائل پریزنر کے کنکلوڈ کرانا چاہتے ہیں آپ نے وہی کام کیا جو بندیال صاحب نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا جی فیصلہ نہ سنائیں جب ایک دفعہ وہ قانون ہی جو ہے الٹرا وائرس ڈکلیئر ہو گیا تو پھر اتنی بڑی ریلیف کا حق نہیں بنتا تھا اور پھر وہ انسانی آزادی پہ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10A کے ہوتے ہوئے اور جب تک آرٹیکل 8 آئین میں موجود ہیں یہ فیصلے جو ہیں آئین سے متصادم ہیں اچھا سر سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے الیکشن سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ان کو سزا سنانے جا رہی ہے سائفر کیس میں جو فرد جرم عائد ہوئی ہیں 9 مئی کو خان کو گرفتار کیا گیا اس لیے کہ 10 مئی میں توشاخانہ کیس میں فرد جرم عائد کروانی تھی اور میں خان کے ساتھ پیش ہوا تھا اس وقت انہوں نے عدالت پولیس لائن میں لگائی تھی وہاں پہ ہمایوں دلاور صاحب کو ہم نے کہا کہ نہ ہمیں نقول دیے گئے ہیں نہ نوٹس ہوا ہے فرد جرم نہیں بن سکتی ہے انہوں نے کہا جی دستخط کر دیں تو ہم نے انکار کیا خان صاحب نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر بھی فرد جرم بن گئی اب ہم سماعت کے دوران کل پھر وہی تاریخ دہرائی گئی ہے نہ کوئی اکنالجمنٹ ہے نہ کوئی سائن ہے نہ کوئی نقول کی کارروائی ہے وہی ذوالقرنین صاحب نے وہی کام کیے ہیں جو پہلے ہمایوں دلاور نے کیا ہے یہ جو عدلیہ ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری یہ بیسیکلی منصفوں سے زیادہ اعلی کار بنی ہوئے ہیں یہ بتائیے گا آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی 8 فروری کو الیکشن سے متعلق کیا ان کا پیغام ہے اپنے کارکنوں کے لیے الیکشن کے لیے پیغام یہ ہے کہ جتنے دیکھیے 3.5 کروڑ لوگ نئے رجسٹر ہوئے ہیں 2018 میں جتنا سالم ووٹ پڑا تھا پورے پاکستان میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اتنا ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے گا پٹواریوں کے ووٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے لیکن جتنے بھی 18 سال سے اوپر پاکستان میں جلسہ بھی کیا بہت جی میں بتاتا ہوں 18 سال کے بعد جو جنریشن آئی ہے 3.5 کروڑ یہ سارے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے پھر اس دفعہ ہم نے اوورسیز کو بھی انوائٹ کیے ہیں کہ آئیں اور تقریباً 1 کروڑ لگ بھگ اوورسیز جو ہیں انشاءاللہ پاکستان آئیں گے ووٹ کاسٹ کریں گے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو خان صاحب کا زور زیادہ اس پہ ہے کہ جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی نیومیریکل سٹرینتھ کو ووٹ میں کنورٹ کریں تاکہ ووٹ صحیح جو ہے کاسٹ ہو جائے آپ نے کے پی کے میں تو
जलसे किए, सारा कुछ किया। यहाँ पर हमने देखा कि जमान पार्क में एक सूरत-ए-हाल होती थी जब खान साहब की कोई पेशी थी या कोई चीज थी, कारकुन बड़ी तादाद में निकलते थे। अब 9 मई के बाद ना यहाँ पर कोई मीटिंग हुई, ना कारकुन बाहर निकलते हैं, तो किधर चले गए सब लोग? ये केपीके में भी यही सूरत हाल थी, और जब हमने नारा लगाया कि खान के हुक्म पे कन्वेंशन करेंगे और कौम को निकालेंगे, तो लोग हमारी बातों को दीवानी की बिड़ समझा करते थे। साबित किया, इधर आज लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये कोई लेवनी बात कर रहा है या कोई पागल सरपिरा है। थोड़ा इंतजार करें, 20 दिन बाद पंजाब की सूरत हाल देखें, ये उठेगी और डट के खड़ी होगी। आपके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं? हो रहे हैं। हम तो FIR खुशामदीद कहते हैं। 30-31 साल तक लोगों के पर्चों में हमने डिफेंड किया है, हम अपने आप को भी डिफेंड कर लेंगे। एक सवाल आम लोगों का है कि केपीके में आप पर एक इल्जाम है कि आपको टिकटें फरोख्त करते हैं, इस तरह की चीजें भी सामने आई, क्या इसमें सदाकत है? तो टिकटों का काम तो मेरे साथ नहीं है, हम तो कन्वेंशन कर रहे हैं, वो तो तंजीम के साथ है। और ये इल्जाम शायद आपने अभी बना लिया। नहीं, ये मैंने आप भी मुझे पटवारी लगते हैं। आखिरी बात ये बताइएगा, आखिरी बात। मैं पटवारियों से बात नहीं करता हूँ। चलिए जी। सर, आपने बहुत सारे जलसे किए, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी पजीराई मिली, पंजाब में क्या करने जा रहे हैं? पंजाब में हम वही काम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आगाज आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इस कन्वेंशन से किया। वकला ने अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है, ILF ने पूरे जोश और जज्बे का इजहार किया है, और इंशाल्लाह जब पंजाब के वकला हमारे साथ होंगे तो समझे कि आधी हमारी जो कामयाबी है वो हमें मिल गई है। सर, कल एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, सिविलियन का, उस पर आपकी क्या ओपिनियन? पाकिस्तान की मुतनाज़ा तरीन फैसलों में जो अदलिया ने दी है, ये एक मुतनाज़ा तरीन फैसला तस्वुर होगा। ये एक इंटरम रिलीफ दी है उन्होंने रियासत को, और इंटरम रिलीफ कभी इंतहाई रेयर सर्कमस्टांसिस में ऐसी होती हैं जहां पे आप इंटरम रिलीफ के जरिए तकरीबन केस का पूरा फैसला ही कर दें। यानी आप बादियू नजर में ये समझ रहे हैं कि रियासत के अपील में बड़े जवाब हैं, और इस वजह से आप प्रोसीडिंग जो है उन अंडर ट्रायल प्रिजनर के कंक्लूड कराना चाहते हैं। आपने वही काम किया जो बंदियाल साहब ने किया था। उन्होंने कहा था जी फैसला न सुनाएं। जब एक दफा वो कानून ही जो है अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया, तो फिर इतनी बड़ी रिलीफ का हक नहीं बनता था, और फिर वो इंसानी आजादी पे आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10A के होते हुए, और जब तक आर्टिकल 8 आइन में मौजूद हैं, ये फैसले जो हैं आइन से मुतसादम है। अच्छा सर, साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। इलेक्शन से पहले आपको क्या लगता है उनको सजा सुनाने जा रही है? साइफर केस में जो फर्द जुर्म आयद हुई है, 9 मई को खान को गिरफ्तार किया गया, इसलिए कि 10 मई में तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद करवानी थी, और मैं खान के साथ पेश हुआ था। उस वक्त उन्होंने अदालत पुलिस लाइन में लगाई थी। वहां पे हुमायूं दिलावर साहब को हमने कहा कि न हमें नकूल दिए गए हैं, न नोटिस हुआ है, फर्द जुर्म नहीं बन सकती है। उन्होंने कहा जी दस्तखत कर दें, तो हमने इनकार किया। खान साहब ने, उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर भी फर्द जुर्म बन गई। अब हम समाअत के दौरान समाअत के दौरान कल फिर वही तारीख दोहराई गई है। न कोई एक्नॉलेजमेंट है, न कोई साइन है, न कोई नकूल की कार्रवाई है। वही जुल्करनैन साहब ने वही काम किए हैं जो पहले हुमायूं दिलावर ने किया है। ये जो अदलिया है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये बेसिकली मुंसिफों से ज्यादा आलाकार बनी हुए हैं। ये बताइएगा, आपकी खान साहब से मुलाकात हुई 8 फरवरी को इलेक्शन से मुतल्लिक, क्या उनका पैगाम है अपने कारकुनों के लिए? इलेक्शन के लिए पैगाम ये है कि जितने, देखिए 3.5 करोड़ लोग नए रजिस्टर हुए हैं। 2018 में जितना सालिम वोट पड़ा था पूरे पाकिस्तान में, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उतना वोट PTI को पड़ेगा। पटवारियों के वोट में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी 18 साल से ऊपर, पाकिस्तान में जलसा भी किया बहुत। जी मैं बताता हूँ, 18 साल के बाद जो जनरेशन आई है 3.5 करोड़, ये सारे PTI का वोट बैंक है। फिर इस दफा हमने ओवरसीज को भी इनवाइट किए हैं कि आए, और तकरीबन 1 करोड़ लगभग ओवरसीज जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, वोट कास्ट करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 फरवरी को खान साहब का जोर ज्यादा इस पे है कि जो करोड़ों लोग हैं इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को वोट में कन्वर्ट करें, ताकि वोट सही जो है कास्ट हो जाए। आपने KPK में तो
जलसे किए, सारा कुछ किया। यहाँ पर हमने देखा कि जमान पार्क में एक सूरत हाल होती थी जब खान साहब की कोई पेशी थी या कोई चीज थी, कारकुन बड़ी तादाद में निकलते थे। अब 9 मई के बाद ना यहाँ पर कोई मीटिंग हुई, ना कारकुन बाहर निकलते हैं, तो किधर चले गए सब लोग? ये केपीके में भी यही सूरत हाल थी, और जब हमने नारा लगाया कि खान के हुक्म पे कन्वेंशन करेंगे और कौम को निकालेंगे, तो लोग हमारी बातों को दीवानी की बिड़ समझा करते थे। साबित किया, इधर आज लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये कोई लेवनी बात कर रहा है या कोई पागल सरपिरा है। थोड़ा इंतजार करें, 20 दिन बाद पंजाब की सूरत हाल देखें, ये उठेगी और डट के खड़ी होगी। आपके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं? हो रहे हैं। हम तो FIR? खुशामदीद कहते हैं। 30-31 साल तक लोगों के पर्चों में हमने डिफेंड किया है, हम अपने आप को भी डिफेंड कर लेंगे। एक सवाल आम लोगों का है कि केपीके में आप पर एक इल्जाम है कि आपको टिकटें फरोख्त करते हैं, इस तरह की चीजें भी सामने आई, क्या इसमें सदाकत है? तो टिकटों का काम तो मेरे साथ नहीं है, हम तो कन्वेंशन कर रहे हैं, वो तो तंजीम के साथ है। और ये इल्जाम शायद आपने अभी बना लिया। नहीं, ये मैंने आप भी मुझे पटवारी लगते हैं। आखिरी बात ये बताइएगा, आखिरी बात मैं पटवारियों से बात नहीं करता हूँ। चलिए।